and a big warm welcome to TM Talks, Real Stories, Real Students. I am Priya and I am super excited to take you all on a journey where brilliance meets conversation. At TMIS, we believe that every student's story has the power to light up someone else's path. And today, we are shining the spotlight on the stars of our school, the toppers of class 10th and 12th in CBSE board examination. So without much ado, let's welcome the torch bearers of TMIS. We have Nandini Gautam, who has topped Bharatpur City with PCM branch, and Dipanshi Gujar, who has topped her school with PCB branch, and Vidhi Goyal, who has topped her class with the score of 97.8% in class 10th. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीएम इंटरनेशनल स्कूल के टीएम टॉक्स पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जब आपको ये पता लगा कि आप भरतपुर के टॉपर्स हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले मैंने अपना रिजल्ट देखा तो उसमें टॉप मोस्ट मैथ्स के मार्क्स थे जो कि मुझे थोड़े से कम लगे एक्सपेक्टेशन से। देन आई वेंट डाउन एंड आई सॉ केमिस्ट्री एंड आई वाज वेरी elated when I saw कि मेरे full score आए हैं। Then I calculated my percentage. It was a bit low than what I was expecting, but still I was happy. And being the topper is not something you can predict. So it was in the evening, I guess, when I got to know that I have scored the highest in PCM branch. So I was happy and my parents also were very happy. जब मुझे पता चला कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो सबसे पहले मैंने अपने मार्क्स देखे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स ने देखे थे। फिर उसके बाद मैंने अपने केमिस्ट्री के मार्क्स देखे, बायो के देखे, फिजिक्स का जिस टाइप का पेपर था उस हिसाब से भी अच्छे थे, पर इंग्लिश और पीएचडी में कम थे तो उन्हें देखे थोड़ा ज़्यादा। मैंने जब अपना रिजल्ट देखा तो मैंने सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल मार्क्स देखे थे एंड दे वर लाइक 76, 79 एंड 80। मुझे लगा कि यही मार्क्स है जो आउट ऑफ 100 है, लेकिन फिर मैंने बाद में अच्छे से देखा, फिर पूरा जब परसेंटेज कैलकुलेट की तो 97.8 थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैंने देखा साइंस में 100 है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जितनी मैंने मेहनत की वॉज वर्थ इट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। You know, when we hear the word topper, we often imagine someone with pile of books, no social life. But what about you all? How was this and last year for you? Did it feel like marathon or did you enjoy the run? I think every preparation journey is a long process. So you cannot, all the time you cannot study and be with your books. There would be times when you would not feel like studying. You would want to go out and talk to your friends or other people. So you have to enjoy the process and you have to, whenever you feel like not studying, you can talk to your parents, your elders, because in that long run you cannot let yourself be stressed or demotivated. So you have to also connect with the outside world, but for only a limited time. You have to also consistently give an equal amount of time for your studies also. The aura of topper is feel in some people's mind like is someone with a pile of books, but it's not like that. क्योंकि जब हम टॉपर के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको अपने दिमाग की जो कैपेसिटी है उसका पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे और आपको कैसे आगे का अपना प्लान करना है। जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम तो आपको पूरी डेडिकेशन से पढ़ना है, फिर हार्डवर्क से पढ़ना है। और आप जब नहीं पढ़ रहे हो तो फिर अपने माइंड को फ्री रखो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर ही सिर्फ पाइल ऑफ बुक फॉर्म होता है। See, it was a kind of marathon for me क्योंकि मेरे साथ जो मेरे और क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो मुझे पता था मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 9th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 10th में मुझे पता था बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैंने की भी। तो ज़्यादा प्रायोरिटी स्टडीज़ को दी, लेकिन जब पढ़ाई की तो एकदम टारगेटेड होकर पढ़ाई की और सिर्फ पढ़ाई की, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी चाहिए होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा हम ब्रेक्स ले सकते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसा कुछ फिक्स्ड तो नहीं है। डेली शेड्यूल
आपको एक प्रिपेयर करना होता है, डेली टारगेट्स प्रिपेयर करने होते हैं कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग पहले फिजिक्स पढ़नी है या पहले मैथ्स पढ़नी है, सुबह मैथ्स पढ़नी है, या आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। डेली फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर आपको अपने टारगेट जो आपने डेली के लिए सेट किया है वो कंप्लीट करना होना चाहिए, और जो भी आपको आज पढ़ाया गया है वो रिवाइज करें, कंप्लीटली रिवाइज करके उसे तब अपना डे एंड करें। जो पढ़ाई है वो आपकी एक, उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है, एक टारगेट बेस। आपको हर दिन जैसे सोने से पहले कल मुझे क्या करना है, उसकी टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मुझे इतने टाइम में 2 घंटे में मुझे फिजिक्स के 200 MCQs करने हैं, मुझे या फिर इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको वो देखना है। और मैं नाइट आउट थी तो फिर मैं रात में ज़्यादा पढ़ती थी, तो उससे अगर मैं कैलकुलेट करूँ एवरेज तो फिर 6 to 7। कितने घंटे पढ़ाई की जगह हमें क्या पढ़ना है, मैं उस पर फोकस करती थी मैं, क्योंकि पहले टाइम टेबल बना लेती थी एक दिन पहले कि कल ये सब्जेक्ट में ये करना है तो यही करना है, क्योंकि अगर वो नहीं किया उस दिन तो अगले दिन के लिए नेक्स्ट टाइम टेबल है, फिर वो बैकलॉग हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है फिर। तो जो हमने टारगेट लिया है अपने लिए कंप्लीट करने के लिए वो पहले कंप्लीट करना चाहिए। तो आपके हिसाब से सेल्फ स्टडी का कितना रोल था? बहुत ज़्यादा रोल हमारी सेल्फ स्टडी प्ले करती है, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते हैं, और रेगुलरली रिवाइज करना ज़रूरी है कि जो आपको 1 महीने पहले पढ़ाया गया था वो आपको रेगुलरली रिवाइज करना है इंटरवल्स में। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको कम से कम 6 आवर्स तो देने ही देने होते हैं आपकी क्लासेस के अलावा, तो बहुत रोल होता है उसका। सेल्फ स्टडी का रोल सबसे ज़्यादा मानूंगी मैं, क्योंकि टीचर्स आपको एक पाथ दिखा सकते हैं, उस पर आपको चलना खुद ही होता है। तो जैसे टीचर ने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, आप उसे आज घर पे जाके रिवाइज करोगे, उसके अंदर अपने डाउट्स ढूंढोगे, दूसरे दिन उन्हें पूछोगे, तो ये सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही आ सकता है। अगर कोई फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो भी सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और इसी की वजह से जो आपकी क्लास के अंदर परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हमने अपने टीचर से एज अ डाउट पूछे हमें उस टाइम समझ आ जाता है, लेकिन अगर हम बाद में उनको वापस करके नहीं देखते तो हम भूल जाते हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ को खुद करके नहीं देखेंगे, खुद अगर टीचर की क्लास में पढ़ाने से पहले अगर एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो वो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। इन अ स्टूडेंट्स लाइफ इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि हम टॉपिक फिक्स करें या फिर टाइम लिमिट फिक्स करें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। I think you must fix your time limit for a particular target, and like you can fix 3 hours for a particular subject, solve the PYQs, all the PYQs of a particular chapter from a particular subject. Then you can fix the next 3 hours for some other topic. Likewise, that you have to go, and you have to be time specific because you have limited time in this preparation journey. हमें अपना अकॉर्डिंग टू मी हमें अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए, क्योंकि और टारगेट फिक्स करने का भी एक तरीका होगा कि अगर आप आज फिजिक्स कर रहे हो और फिजिक्स का वो वाला टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके साथ में आप एक बायो का वो वाला टॉपिक लो जो आपको इजी लग रहा है। इससे हमारे दिमाग का कोऑर्डिनेशन बनेगा और एक डिफरेंट थिंग होगी, तो फिर वो अच्छे से हम ग्रेस्प भी कर पाएंगे। तो फिर आपको टारगेट फिक्स करना है, उसकी भी टाइम लिमिट देनी है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है। टाइम की जगह टॉपिक फिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने टाइम फिक्स किया कि मुझे फिजिक्स 2 घंटे पढ़नी है, तो मेरे साथ क्या होता था, अगर मैंने टाइम फिक्स किया कि मेरी नज़र सिर्फ घड़ी पर रहती थी, 2 घंटे होने वाले हैं, बस 2 घंटे हो गए, फिजिक्स साइड में रख दी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने टॉपिक फिक्स कर लिया कि मुझे ये टॉपिक करना है खत्म, ये चैप्टर करना है, तो वो चैप्टर भले ही 4 घंटे में हो, लेकिन वो चैप्टर अच्छे से होगा, वो चैप्टर के नोट्स भी होंगे, एनसीईआरटी भी होगी, जो भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं वो भी होंगे। तो एक अगर टॉपिक लेंगे, 2 घंटे में हमने कितना पढ़ा हमें नहीं, तो हो सकता है उस टॉपिक के सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े हो हमने 2 घंटे में। लेकिन अगर टॉपिक फिक्स करेंगे तो वो एनसीईआरटी भी हो जाएगी, नोट्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो टॉपिक फिक्स करना चाहिए। तो आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, स्पेशली फोन्स और सोशल मीडिया, तो आपने अपना फोकस कैसे बनाए रखा? डिस्ट्रैक्शंस तो हैं ही, लेकिन ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं सब चीज़ों को, सारी फैसिलिटीज़ को।
पर्सनली मेरे पास मेरा पर्सनल मोबाइल फोन नहीं है, ना कोई मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है। मैं अपनी पेरेंट्स की ही मोबाइल फोन से जब भी मुझे यूज करना होता है तो मैं यूज करती हूँ, और जो भी डाउट्स वगैरह मुझे देखने होते थे वो भी मैं देखती थी। लेकिन अगर किसी के पास है पर्सनल मोबाइल फोन या अकाउंट्स, तो आप अपना टाइम थोड़ा बहुत फिक्स कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप बर्नआउट फील हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए इन सब चीजों को, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर आप उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो आप फोन पे देख रहे हैं, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और उससे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। From my point of view, distraction is inversely proportional to pressure. जब आप सोचोगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इस चीज से, तो आप वो सोचो कि आपका प्रेशर कितना ज्यादा है, तो अपने आप ही डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी अभी ज्यादा क्या है, आपको पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया जो आपके एग्जाम्स के बाद भी आपको मिल जाएगा। और तब भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे 5 मिनट आप पढ़ लिए, थोड़ा देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, पर उस टाइम में सोचना चाहिए अगर वो 5 मिनट हमने स्क्रॉल किया तो वो 1 घंटा निकल जाता है, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो फिर उसका एक टाइम फिक्स करो, जैसे अब खाना खाने के बाद अब मेरे पे कुछ, अब मैं रात में ज्यादा सेल्फ स्टडी करूंगी तो फिर इस टाइम पे मैं देख सकती हूँ, तो मैं ऐसे टाइम मैनेज करती डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए मैं फ़ोन अपने रूम में नहीं लेकर जाती थी। मेरा अपनी मम्मी का ही फ़ोन है, पर्सनल फ़ोन नहीं है मेरा, ना ही मैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर हूँ, व्हाट्सएप ही यूज़ करती हूँ। और मैंने अपनी मम्मा को बोला हुआ था एग्जाम टाइम पर अगर मैं मेरे हाथ में अगर आपको फ़ोन देखे तो छीन लेना, क्योंकि वो फ़ोन पे जैसे दीदी ने बोला कि 1 घंटा चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। तो फ़ोन मैं रूम में नहीं लाती थी, और अगर बहुत ज़्यादा अगर डाउट, वैसे तो मैं टीचर से क्लियर करती थी, नहीं बहुत ज़्यादा अगर तभी पूछना होता था तभी मैं फ़ोन को लेती थी, नहीं तो फिर। Let's talk about those quirky study habits. Did you people have any that really helped you to stay focused or made the process more fun? I think for focusing for a longer time, you have to develop a habit of sitting at a place. Because if you would leave your place and go somewhere for a while, then you would not be able to focus consistently. So you have to develop a habit of sitting for at least 3 hours. Because even the exams we are to appear in, they are of 3 hours. So you have to develop a habit of sitting for 3 hours continuously, first of all. And when you want to take a break, do not use mobile phones, and you can also walk for a while, because sitting for a long time can give you health issues as well. So you can walk, or you can do a little bit of exercise, so that works. मैं पोमोडोरो टाइमर टेक्निक यूज करती थी। इसके बारे में मुझे अगस्त सितंबर में पता चला था। ये मेरे लिए एक सेवियर की तरह काम किया, क्योंकि उसके अंदर आपको 25 मिनट्स आपको फुल फोकस करना है, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसके अंदर भी। मैं टाइमर के अंदर भी अपना वो टारगेट फिक्स करती थी कि इस 25 मिनट्स में मेरा इतना टॉपिक हो जाना चाहिए, वो हो भी जाता था। फिर 5 मिनट का आपको गैप मिलता है, उसके अंदर आपका माइंड रिसेट होगा, फिर अगेन 25 मिनट्स, देन 5 मिनट गैप। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, इससे आपका माइंड जो है, क्योंकि ये प्रूवन है, क्योंकि हम 25 मिनट ह्यूमन ब्रेन जिस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकता है उसमें हम करते हैं, और वो हमारा ज्यादा जल्दी हमारा ग्रैस्प होता है। एक 25 मिनट्स के अंदर फिर एक टाइम ऐसा है, मेरा एक पूरा बायो का चैप्टर भी रिवाइव हो जाता था। फिर आप उस टाइम को बढ़ा भी सकते हो, जैसे 50 मिनट्स एंड देन 10 मिनट रेस्ट। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था वो था फोकस होकर पढ़, मतलब जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो एकदम फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। एक दिन पहले अपना टारगेट बना लो कि ये पढ़ना है, तो ये करके ही सोना है रात में। और अगर कुछ डाउट्स हैं तो अगले दिन जाकर उन डाउट्स को क्लियर करना है। मैंने ज़्यादातर अपने डाउट्स के लिए फ़ोन यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो भाई स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और अगर हम अपने डाउट्स को लेकर टीचर्स के पास जाते हैं तो हो सकता है वो डाउट्स को क्लियर करने के साथ साथ हमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत बार बता देते हैं, जो हमें आगे जाके बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए। तो डाउट्स को टाइम टू टाइम सॉल्व करना चाहिए, और टीचर से ज़्यादा पूछना चाहिए, फ़ोन में नहीं। So being a 10th थी, मैं तो बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, लेकिन आप लोग जब डिमोटिवेटेड फील करते थे तो आप कैसे बाउंस बैक करते थे? डिमोटिवेटेड फील करना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि
कभी आपको लगेगा कि इतने सारे बैकलॉग्स हैं या इतने सारे चैप्टर्स मेरे रह रहे हैं या फिर मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी फेज से गुजर रहे हैं अभी, और उन्हें भी ऐसा फील होता होगा। लेकिन हम अपने आप को मतलब ये ना सोचें कि नहीं हो पा रहा है तो हमें नहीं करना, हमें करना है, क्योंकि हमारा कोई टारगेट है वो हमें पूरा करना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो हमें डीमोटिवेटेड फील करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे और ज्यादा इम्प्रूव करें। जो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें, मतलब ये देखें कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उनको एनालाइज करें, टीचर्स से पूछें। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जब ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहे हो तो अपने पेरेंट्स से बात करें, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। और या फिर आप अपने सिबलिंग से भी बात कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत मतलब इस तरह से आप अपनी जो ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन है इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं डिमोटिवेशन और स्ट्रेस को अपने पॉजिटिव प्रेशर की तरह लिया है मैंने, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि डिमोटिवेशन अगर मुझे हो रहा है, मतलब मैं उस चीज को लेके सिंसियर हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से तो ऑलरेडी आगे निकल चुकी हूँ उस चीज में, क्योंकि मैं उसके लिए सिंसियर हूँ, मैं डिटरमिन्ड हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए डिमोटिवेशन और प्रेशर फील हो रहा है। और इसे मैं प्लस पॉइंट की तरह भी लेके चलती थी कि अगर मेरी क्लास में इन बच्चों के मेरे से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे डिमोटिवेशन होगा कि मेरी रैंक इनसे कम आ रही है, इनसे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अगले टेस्ट में फिर असेसमेंट है, फिर जो भी पेपर होगा उसमें मुझे उनसे ज्यादा लेके आना है, वो काम करता भी है। आप डिमोटिवेट हो रहे हो, मतलब आप समझो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम सही पाथ पे जा रही है। और इससे डील करने की बात है तो हमें डील करने के लिए हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो अपने आप ही वो आपको चेयर करने के लिए कुछ ना कुछ आपको जो चीज़ पसंद है वो करते हैं। जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी तो मैं अपने टीचर से बात करती थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो बताते थे तुम्हारी कमी यहाँ पर है, यहाँ इम्प्रूव करो, ये इम्प्रूव करो। इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैम ने मुझे बोला डेली एक लेटर राइटिंग लिखो, डेली एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। ये क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी पड़ती है, मेरी इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं थी। तो मैम ने मुझे प्री बोर्ड्स के बाद टाइम था तब उन्होंने बोला कि डेली एक लेटर राइटिंग लिखो, डेली क्रिएटिव शॉर्ट स्टोरी लिख के मुझसे चेक कराओ। मैं लिखती भी थी, मैंने डेली लिखा, उनसे चेक भी कराया, तो उससे कुछ इम्प्रूव हुआ। मैंने अपने एल्डर सिस्टर है मेरे एल्डर ब्रदर है, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बताया क्योंकि वो भी इस फेज से जा चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। You know, we have been only talking about studying, discipline, focus, but let's be real. No one can study all the time. So, would you please tell us what did your break time look like? In the evening, when I was free from my studies, I would go out with my brother and I would play badminton for a while. And in the morning, sometimes I would do a bit yoga. And even during the classes, in the break time, I would eat something or I would talk with my friends just for relaxing a bit. ब्रेक टाइम फॉर मी, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर अगर वो दिन में है तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, अपनी मम्मी से, अपने भाई से बात करती थी, अपने फ्रेंड से बात करती थी। और शाम को मेरा ब्रेक टाइम फिक्स था कि 1 घंटे मेरा ब्रेक होगा, तो उसके अंदर मैं एक्सरसाइज करती थी और डांस करती थी। फिर एक रात में ब्रेक टाइम होता था तो उसमें मैं फ़ोन देखती थी या फिर खाना खाने के बाद में वॉक करती थी। ब्रेक टाइम के लिए अगर जैसे मैंने लगातार 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली तो मैं अपने रूम से बाहर निकल कर ऐसे पानी वानी भरने के लिए जाती थी, बाहर घूमती थी थोड़ा बहुत, अपनी दीदी से बात कर ली, पेरेंट्स से बात कर लिया, फोन देख लिया थोड़ी देर, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। और शाम को हम बैडमिंटन खेलने भी जाते थे। फिर खाना खाने के बाद फिर सभी फैमिली मेंबर साथ में बैठते थे, तो मैं बहुत। तो आप सभी टीएम इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स हो, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? मैं स्कूल में 7 सालों से पढ़ रही हूँ। मैं 6th क्लास में थी जब मैं यहाँ आई थी। पढ़ाई में मैं अच्छी ही थी, लेकिन थोड़ा सोशलाइज करने में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन मेरे टीचर्स और क्लास टीचर स्पेशली उस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जिन्होंने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एनकरेज करते थे वो लोग। और मुझे अच्छा फील होता था कि मैं नई स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एडजस्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बाद में।
फिर उसके बाद जब अगले साल मैं एक नई क्लास में आई, दोबारा से सेक्शन चेंज हुआ मेरा, तो वहाँ पर काफी अच्छे और टैलेंटेड बच्चे थे जिनकी वजह से मुझे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला और खुद को ग्रो करने का एक मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और ज्यादा इम्प्रूव करूं। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से जो हेल्दी कंपटीशन था उसकी वजह से मैं काफी कुछ सीख भी पाई और आगे चलते मुझे काफी मतलब मदद मिली सबसे। मैं स्कूल में फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। 12 साल मतलब मेरी पूरी स्कूल लाइफ ही स्कूल में गई है और ये जो टाइम है गोल्डन ईयर्स थे। अब जब मैं स्कूल से पास आउट हो गई तो मुझे याद आता है सच्ची में सेकंड होम जो स्कूल को बोलते हैं वो सही बोलते थे, क्योंकि अब स्कूल की बहुत ज्यादा याद आती है। स्कूल जैसा जो आपको साथ के साथ आपको डेवलप करना और आपको वहीं पे सेम एट द सेम टाइम कंफर्ट जो फील कराते हैं आपकी स्टडीज के साथ भी, आपके टीचर्स भी हो या फिर अकेडमिक्स भी हो, तो फिर वो सब स्कूल ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं स्कूल में सेकंड क्लास से पढ़ रही हूँ। एज ए न्यू स्टूडेंट मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने थे, 2-3 फ्रेंड्स ही बने थे, लेकिन मुझे ऐसे लेफ्ट आउट फील नहीं होता था क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सभी एकदम फ्रेंडली मैनर में बात करते थे। मेरी एक हिंदी की मैम थी, मुझे आज भी याद है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी एज अ फेवरेट टीचर। अगर हम किसी नए स्कूल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी टीचर्स हम उनको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर उस सेशन हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन भी हुआ था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, लोग मुझे जानने लग गए थे। फिर मेरे लिए सारी चीज़ें सही मतलब नॉर्मल हो गई थी और बहुत ज़्यादा जैसे स्कूल में डिसिप्लिन है, पढ़ाई भी एकदम अच्छे से होती है। तो वो जैसे यहाँ पे SIPs चलती हैं, तो जो हमें 10th में पढ़ना था वो हमने पहले 8th में पढ़ लिया था। तो 10th में जो भी हमने पढ़ा वो एज हमारे लिए रिवीजन था, हमें पहले से आता था। तो ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ। तो आपकी इस सक्सेस में और इस अचीवमेंट में स्कूल का क्या रोल था? स्कूल का काफी ज्यादा रोल था। मुझे स्कूल ने बहुत कुछ मतलब दिया है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं इतना एक्सपोजर नहीं था मेरे पास नई चीजों के बारे में, मुझे पता नहीं था बहुत सारी चीजों के बारे में। यहाँ आके मुझे पता चला धीरे धीरे। और स्पेशली 10th में जब मैं थी तो कुछ ऐसे टीचर्स आए जो बाहर के थे, मतलब सिटी से भी बाहर के और स्टेट्स के टीचर्स आते थे यहाँ पे। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला और लाइफ लॉन्ग वो मेरे साथ चीजें रहेंगी जो मैंने यहाँ सीखी, क्योंकि स्कूल ने बहुत मतलब काफी कुछ मुझे दिया है। स्कूल ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। मैं सोच नहीं सकती कि जो फर्स्ट क्लास में दीपांशी थी और जो 12th में उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा ये स्कूल की वजह से, जितना मैं इतना इवॉल्व कर पाई। क्योंकि स्कूल में ना कि ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स बट की जो एकेडमिक्स होती है 7th क्लास जो 6th क्लास तक का बच्चा होता है उसमें वो इतना नहीं सोचता पढ़ाई के बारे में, पर 7th से स्कूल में इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देने लग जाता है 7th क्लास में कि इस बच्चे के मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, इसके मुझसे कम आ रहे हैं। 7th क्लास ही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने इतना ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करा। फिर मेरी ग्रोथ होती गई और स्कूल की मैनेजमेंट पॉलिसीज भी ऐसी हैं जो आपके को करिकुलर्स पे आपके स्पीच एक्सटेम्पोर इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देगी, तो आपकी सोशल स्किल्स बढ़ेगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा और आप जो आउटसाइड वर्ल्ड को जब फेस करोगे तो फिर आपको ज़्यादा अलग नहीं फील होगा, आपको लगेगा कि मैं कंफर्ट में हूँ पर दूसरी रहूँ। सो विधि दीदी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने 2nd क्लास में 6-7 साल की इतनी छोटी उम्र में एनुअल फंक्शन को होस्ट किया था, तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं उसी साल स्कूल में आई थी, तो ऐसे स्कूल ऑडिशंस हो रहे थे, किसी को डांस में लेना है, किसी को एंकरिंग में लेना है। मैंने बहुत बार चेंज भी किया था, पहले मुझे डांस में लेना है, फिर एंकरिंग करनी है, फिर डांस करना है, फिर लास्ट में जाके कि मुझे एंकरिंग ही करनी है। फिर उस टाइम पर जो टीचर थे हमारे रविता मैम, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो वहाँ पर मैंने एंकरिंग की। एक स्टेज फियर जो होता है वो मेरे अंदर उस टाइम पर नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, तो वो उससे कॉन्फिडेंस भी आया। उसके बाद जो भी बहुत मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मुझसे बोलते थे कि आप एंकरिंग करो, तो मैं करती थी। अगर मैं आज देखती हूँ, अगर जैसे स्कूल की असेंबलीज भी होती हैं तो उसमें एंकरिंग करनी होती है, तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मुझे नहीं करनी, मुझे डर लगता है, एक बड़े क्राउड के सामने जाने में, बोलने में, माइक पे बोलने में डर लगता है, तो वो मेरे साथ नहीं होता।
तो मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उसी साल में आई थी, उसी साल मतलब एनुअल फंक्शन हुआ, मैंने पार्टिसिपेट भी किया, तो ये स्टेज फियर मेरे अंदर अब नहीं है। तो उसका आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट था? अगर बोल दिया जाए कि आपको कल बोलना है, आज बोलना है, स्टेज पे जाके इतने सारे लोगों के सामने बोलना है, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर नहीं लगता है इतने सारे लोगों के सामने बोलने से, तो स्टेज फियर नहीं है। और इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हैं इसके? फ्यूचर में अगर कोई चांस मिलता है किसी भी मीटिंग को होस्ट करने का, जैसे बहुत सारी कंपनीज में मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर एज ए कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे अंदर, डर नहीं लगेगा अगर किसी के भी सामने कुछ भी बोलने में, तो ये अच्छा है। अपने जूनियर्स के लिए ऐसी कुछ गोल्डन टिप्स जो आप लोग देना चाहेंगे बोर्ड्स क्रैक करने के लिए? सबसे पहले आपको PYQs देखने हैं, क्योंकि CBSE आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देगा, पर उसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आपको PYQs से ही पता चलेगा। नेक्स्ट है आपको डिटरमिन्ड रहना है, डेडिकेटेड रहना है। जो आप पढ़ रहे हो आपको पता है कि अगर आपने ये मेहनत करी है तो फिर ये एक दिन आपको उसका अच्छा सक्सेस भी मिलेगा। मैनिफेस्ट करते रहो अपनी सक्सेस को, तो अल्टीमेटली वो मिल ही जाता है। और नेक्स्ट थिंग होगी कि अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो वो ज़रूर पूरा होगा। सबसे पहला ये है कि फोकस्ड पढ़ाई होनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमने ये फॉर्मूला लगाया, इसके बाद ये हुआ, तो हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि इसके बाद यही होगा, ये क्यों हुआ। खुद अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम खुद से भी क्वेश्चन करनी चाहिए कि ये मैंने ऐसे ही क्यों किया, ये ऐसे भी तो हो सकता था। तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ तरीके आते हैं, मेथड्स आते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। और अगर हमें कोई डाउट है तो हमें टाइम टू टाइम क्लियर करना चाहिए, तभी टीचर से जाकर क्लियर करना चाहिए। और कभी भी खुद को डिमोटिवेट फील नहीं कराना चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहे, पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए कि हाँ मुझे सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी अभी हो रहा है, तो मुझे करना है। तो हमेशा खुद को ऐसे बूस्ट अप करना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो नंदिनी दीदी, अभी अभी आपका रिजल्ट आया है, आपने JEE एडवांस क्रैक कर लिया है, तो आप बताएंगे कि आपका आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? 2 साल पहले मैंने सोचा था कि किसी अच्छी IIT में एडमिशन मिलेगा, तो उसके लिए मैंने 2 साल काफ़ी मेहनत की। तो जब रिजल्ट आया तो अच्छा लगा कि मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे मिला, और आगे भी मैं किसी IIT से ही एडमिशन लूँगी, तो वहाँ भी मतलब जो अभी तक मैंने सीखा है वो मेरे बहुत काम आएगा, स्पेशली एक्स्ट्रा करिकुलर्स और जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें। और आगे भी हार्ड वर्क तो करना ही है लाइफ में। So it was a surely lovely session. So before signing off, I would like to ask each of you to share a piece of advice, not just about marks, but about mindsets. I think you must develop your mindset in a way so that you can adapt to the world outside. Because when you would go to different places, you would meet new people, and some would be better than you, some would be like you. So you might not always find people convincing. So you must learn to adjust and tolerate them as well. And you must develop a problem-solving attitude. You must not be stuck somewhere in your life. एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए हर इंसान के अंदर, ना कि एकेडमिक्स में, बल्कि पूरी लाइफ टाइम में। आप आगे जाके कोई भी काम करोगे, सर्विस करोगे, कोई भी जॉब करोगे, तो उसके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक मैनिफेस्टेशन पावर होनी चाहिए कि क्योंकि हमें एक जगह पे रुक के नहीं रहना, हमें अपनी लाइफ में आके ग्रो करते जाना है, तो वो मैनिफेस्टेशन से हो पाएगा। तो आपको वो करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है, कुछ गलत कह रहा है हमारे बारे में, तो हमें उसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। और हमें उस पर इम्प्रूव करना चाहिए कि आगे जाकर वो कोई और हमसे ना कहे, या वही इंसान हमसे और कुछ ना कहे। पॉजिटिव सोचना चाहिए अपने बारे में भी, और किसी और के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। और एक टारगेटेड गोल होना चाहिए कि हमें ये करना है तो यही करना है, उससे भटकना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ करें, जैसे अगर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे सोचकर हमारा गोल कम नहीं होना चाहिए कि मैंने सोचा कि मेरे 95 आने चाहिए, तो नहीं अब 90 आ जाए वही बहुत है, ये नहीं होना चाहिए। स्कूल में मार्क्स कम आते हैं, ये मेरे साथ हुआ। मेरे प्री बोर्ड्स में जितने मार्क्स आए उतने बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में बहुत कम आए, लेकिन बोर्ड्स में बहुत अच्छे आए। तो
प्री बोर्ड्स के मार्क्स को देखकर, मिड टर्म के मार्क्स को देखकर अपने गोल को कम नहीं करना चाहिए कि 95 सोचा था स्टार्टिंग में तो अब 90 आ जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 95 से वो और आगे जाना चाहिए, तो ऐसे पॉजिटिव और टारगेटेड होना चाहिए। To everyone listening, remember, success is not about scores. It's about balance, belief, and showing up every day, even when it is tough. Thank you all for coming and giving your precious time, and wish you all best of luck for your future endeavors. So this was TM Talks. Signing off for now, but we will be back with more real stories, real heroes, and inspirations from the heart of TMIF. Till then, keep dreaming, keep shining.